Hello students, welcome to economic class, and this is video number 18, and in this video children we are going to discuss about movement in demand curve. So there is a two kind of movement in demand curve. First is movement along the demand curve, and another one is shift in demand curve. We will discuss about these two matters later on the topic, but before proceeding further, children, let me remind you the point we have discussed in the previous video. In the previous video, children, we discussed about the law of demand and also exceptions to the law of demand, right? Law of demand states that when price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. It means there is a inverse relationship between price and quantity demanded, or in a very simple word, we can say that there is a opposite relationship between price and quantity demanded. It means when price increases, quantity decreases, quantity demanded decreases, and when price decreases, quantity demanded increases. It was law of demand, keeping the other factors constant, right? Except price, we have to keep all the factors constant. But children, there is some situations where the law of demand does not follow the rule and it become deafy, or we can say it does not follow the law of demand, right? That is called exception to the law of demand. So let me elaborate you, because in the previous video by mistake one point has been remained, I didn't explain. So before proceeding further the point written on the board, let me explain you the previous point also we have discussed and it was pending. So children, see, this is law of demand. Law of demand. According to the law of demand, children, when this is demand curve, right? So when, for example, this is initial price and initial quantity demanded. So there is a negative relationship between price and quantity demanded. Price increases, then quantity demanded decreases, and when price decreases, quantity demanded increases. This is the law of demand. So according to the law of demand, the demand curve slopes downward from left to right side, right? But whenever when the situation does not follow the law of demand, or whenever we represent the exceptions to the law of demand, so what happens? The demand curve slopes upward. This is downward sloping curve, but this is upward sloping curve. Upward sloping curve. Sorry, this is upward sloping curve. It is also demand curve. It means when price increases, for example, at price P, quantity demanded is Q, but when price increases, for example, P1, price increasing, so you can say quantity demanded also increasing. Price increasing, quantity demanded also increasing. And when price decreases, for example, P2, you can see here quantity demanded also decreases. So there is a positive relationship between price and quantity demanded whenever there is a exceptions to the law of demand. कहने मतलब ये कि वो सारी सिचुएशन जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड ट्रू नहीं होता है, वहाँ पर जो हमारी डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है, और एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में चिल्ड्रन पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ऑल्सो डिक्रीज होगी. बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज, फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीजिंग फ्रॉम P टू P1, सो यू विल सी यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है, ये जो क्वांटिटी है इससे कम है, ठीक है ना. एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि प्राइस P2 है, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ पर करेगी इसको, ये अपना E ले लेते हैं, ये E1 हो गया और ये पॉइंट हो गया अपना E2. आप देख सकते हो कि प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है. सो दिस इज चिल्ड्रन समथिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. लेट्स come to the point I have written on the board to be explained. Let's start. Movement or change in the demand curve. Change in the demand curve. Children, we have discussed about the demand and demand curve in the previous video. Change in demand curve. Change in demand curve.
चिल्ड्रन डिमांड कर्व में दो तरीके से चेंज होता है। एक तो इसमें होता है मूवमेंट और एक तो होता है इसमें शिफ्ट। मूवमेंट इन डिमांड कर्व, जो मूवमेंट होता है चिल्ड्रन, मूवमेंट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज होती है या फिर प्राइस डिक्रीज होती है, ठीक है। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। बाकी जितने भी फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्राइस चेंज होती है उनको कांस्टेंट रखने के बाद प्राइस में चेंज होने की वजह से जो चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में, तो उसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं। मूवमेंट अपवर्ड होता है, मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, हम सब इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइस की वजह से जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व या फिर उसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जो मूवमेंट होता है दो तरीके से होता है, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा। एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट कब होती है कि जब हमारी डिमांड में चेंज आता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और हमारी प्राइस में जो चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो ये जो जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो डिमांड कर्व चेंज शिफ्ट हो जाती है, वो तो शिफ्ट होती है, राइट वर्ड शिफ्ट होती है, उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, या फिर हमारी डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है जिसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि चेंज इन डिमांड कर्व हैपन्स बिकॉज ऑफ टू रीजन। फर्स्ट इज नोन एज मूवमेंट बिकॉज ऑफ प्राइस, एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस चेंज होगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट रखना है, अदर फैक्टर की वजह से हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। आई होप कि ये पॉइंट्स मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। फर्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज किस वजह से होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, कि प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए किसी और फैक्टर में व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होती है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हैं, उसी को हम कहते हैं चिल्ड्रन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है चिल्ड्रन, कि हम जो डिमांड कर रहे थे उसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, या तो वो कम हो रही है या फिर वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से दो तरीके के मूवमेंट होते हैं चिल्ड्रन, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। इसको हम कह सकते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैं आपको एक डिमांड कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई को, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चिल्ड्रन प्राइस, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं क्वांटिटी। अब चिल्ड्रन ये होगी हमारी इनिशियल डिमांड कर्व, जिसका नाम मैंने रख दिया डी डी, और हम मान लेते हैं कि ये हमारी इनिशियल प्राइस है और ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है। अब बाकी जो फैक्टर हैं उनको हम कांस्टेंट रखेंगे, प्राइस को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो हम पहले प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। तो मान लीजिए कि प्राइस पहले P था, अब ये प्राइस हो गया आपका P1। अब यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो डिमांड कर्व को मान लेते हैं कि वो E1 पर इंटरसेक्ट करती है, यही हो गया, और ये प्राइस P1 हो गया, जो प्राइस जो है डिक्रीज हो गया है। प्राइस डिक्रीज होने से चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो क्वांटिटी है, यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस पर Q1 पर डिपेंड करेगी। तो जब प्राइस कम होता है तो चिल्ड्रन ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारा जो डिमांड है, ये देखिए डिमांड यहाँ पहले यहाँ था, अब ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। डाउनवर्ड मूवमेंट इसमें होता है, शिफ्ट मैंने गलत बोल दिया, इसे कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। अच्छा, डाउनवर्ड मूवमेंट क्यों? क्योंकि अच्छा इसको हम ये भी कहते हैं कि एक्सपेंशन इन डिमांड, ये देख सकते हैं, ये इसको हम और नाम से जान सकते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, कि हमारी जो डिमांड थी वो एक्सपेंड होगी। पहले मान लीजिए अगर ये था 10 यूनिट, तो हम 15 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्राइस कम हो गया है, प्राइस कम होने से हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड वी नो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड।
तो चिल्ड्रन ये हो गया आपका एक्सपेंशन इन डिमांड, और इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, कि जो हमारी डिमांड कर्व है, ये देखिए इसको हम ये भी कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि हम डिमांड कर्व पे मूवमेंट कर रहे हैं चिल्ड्रन। ये हमारी डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पर ही मूवमेंट करेंगे, इस डिमांड कर्व को हमें छोड़कर कहीं नहीं जाना है। और इसमें जो मूवमेंट है चिल्ड्रन दो तरीके का हो सकता है, या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा या अपवर्ड मूवमेंट होगा। डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसका मतलब ये है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसका अपोजिट हम कर लेते हैं चिल्ड्रन, कि अगर हम मान लेते हैं कि ये प्राइस जो है हमारा यहाँ पर P2 हो जाता है, तो यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पॉइंट T2, और यहाँ से आप वर्टिकल लाइन ड्रा करोगे तो चिल्ड्रन ये एक्स एक्सिस को मान लेते हैं Q2 पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप देखिए कि जब प्राइस डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई है, और जो मूवमेंट है वो अपवर्ड मूवमेंट हो गया है। अब ये इनिशियल था ना, यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट चला गया, यानी हमारी डिमांड कर्व जो है इसमें मूवमेंट हो रहा है अपसाइड की तरफ, तो इसे कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, या इसको हम चिल्ड्रन कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब चिल्ड्रन आपको जानता है सिकुड़ जाना या कम हो जाना। तो आप देख सकते हो कि जब ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो गई, यानी क्वांटिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जितनी हम डिमांड पहले कर रहे थे, मान लीजिए पहले हम 10 कर रहे थे, अब हम सिर्फ 5 यूनिट कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन इट वाज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या हम इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक्सपेंशन इन डिमांड है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, हमने आपको बता दिया, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चिल्ड्रन बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट। आपने देखा कि जो मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व में बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, तो दो तरीके के मूवमेंट है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड बोथ हैपन्स बिकॉज ऑफ इन फ्लक्चुएट इन द प्राइस। जब प्राइस में चेंज आता है तो हमारा मूवमेंट होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं चिल्ड्रन चेंज इन डिमांड, कि हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है। तो चेंज इन डिमांड चिल्ड्रन हैपन्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स कीपिंग प्राइस कांस्टेंट, कि हम इसमें प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं किसी और फैक्टर की वजह से। अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है या फिर चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसी को हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि इसमें हमारी जो डिमांड कर्व चिल्ड्रन वो शिफ्ट होती है। तो जो शिफ्ट होता है चिल्ड्रन वो दो तरीके का होता है, वह तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वर्ड जो शिफ्ट होगा मूवमेंट डिमांड कर्व, उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, और राइट वर्ड शिफ्ट होगा उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पर चिल्ड्रन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, कि हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे। जो डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक इनिशियल डिमांड को बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, ये हमारा है वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लिख लेंगे प्राइस। और चलिए देखो ये प्राइस लाइन हम बना लेते हैं पहले ही। ये जो हमारी लाइन है ये प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट है। मैंने कहा ना कि हम यूनिट कितने भी कम ज़्यादा परचेज करेंगे लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। और ये चलिए ये हमारी हो गई इनिशियल डिमांड कर्व डी डी जो है हमारी इनिशियल डिमांड कर्व है। अब हम मान लेते हैं कि किसी और फैक्टर की वजह से हमारी जो प्राइस जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। कि पहले हम जितनी डिमांड कर रहे थे, ये देखिए पहले हम इतनी डिमांड कर रहे थे लेकिन अब हम डिमांड कम कर रहे हैं कि डिमांड हमारी इतनी हो गई। पहले ये 10 यूनिट थी, अब हम 5 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आप इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हम मान लेते हैं हमारा ई है, तो इसको ये E1 पर इंटरसेक्ट करेगी। अगर यहाँ से आप देखोगे इस पॉइंट से अगर आप डिमांड कर्व ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि हमारी जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। ये इनिशियल डिमांड कर्व है, किसी और फैक्टर की वजह से
हमारी डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। देखिए डिमांड कर्व है और इसके इस साइड में ये लेफ्ट साइड है, तो इसे कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि हमारी जो डिमांड कर्व है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। और इसको चिल्ड्रन कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कि जो हमारी डिमांड थी वो डिक्रीज हो गई। देखिए पहले 10 थी, अब 5 यूनिट की हम डिमांड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। इसका अपोजिट हम कर लेते हैं कि किसी और फैक्टर की वजह से अगर हमारी डिमांड जो है इंक्रीज हो गई है तो क्या होगा कि आपकी डिमांड कब चिल्ड्रन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। तो हम इस तरीके से कर लेते कि जो प्राइस, अब मान लीजिए कि डिमांड पहले 10 की कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं 15 की। यहाँ से अगर आप करेस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करोगे वर्टिकली तो ये मान लेते हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी E2 पर, और डिमांड कर यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इसको इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पर। ये जो है चिल्ड्रन देखते हैं, आप देख सकते हो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। राइटवर्ड शिफ्ट को हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। पहले हम 10 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, अब हम 15 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं जो पहले से ज़्यादा है। तो ये हो गया चिल्ड्रन डिक्रीज इन डिमांड, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड कब, क्योंकि हमारी पूरी डिमांड कब शिफ्ट हो रही चिल्ड्रन, अपनी जगह से वो छोड़कर दूसरी जगह पर जा रही, इसी को कहते हैं शिफ्ट। या फिर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब कि डिक्रीज इन डिमांड की डिमांड कम हो गई, और राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है चिल्ड्रन इंक्रीज इन डिमांड की डिमांड इंक्रीज हो गई। कीपिंग प्राइस कांस्टेंट देयर इज अ चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि हम प्राइस चेंज नहीं होगा, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड चिल्ड्रन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब चिल्ड्रन कुछ रीजन बोर्ड में लिखे हुए हैं कि जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है डिमांड कर्व में, या हम ये कहें कि राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसके कौन कौन से रीजन, ये रीजन चिल्ड्रन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। वेरियस रीजन्स फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है आइदर लेफ्ट और राइट, happens because of these the following reason. First is children change in price of the substitute goods. Substitute good, जैसे गिवन कमोडिटी है तो गिवन कमोडिटी का जो सब्सटीट्यूट गुड है, ठीक है ना, अगर गिवन कमोडिटी का प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है या सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारी डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपको पिछले वीडियो में हमने बताए भी थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिनकी डिमांड एक साथ हम करते हैं, तो अगर एक की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसकी डिमांड कम या ज़्यादा करते हैं। तो चलिए, मुझे नहीं लगता कि हम पॉइंट के बारे में आपको ज़्यादा बताएं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस आप ये जान लीजिए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी डिमांड कब इंक्रीज या डिक्रीज होती है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करूँगा चलिए वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, जिसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड हमने अलग से भी लिख दिया है, तो आप इसको अगर रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू चिल्ड्रन कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट होता है बहुत अच्छे समझ में आ जाता है। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।